Foil. It will take a moment to share the screen. अशोक जी, जब तक स्क्रीन आती है, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप फॉइल के बारे में कुछ बिगिनिंग इंट्रोडक्शन दे दें तो दैट विल बी मच बेटर. Right. I'll. As I am sharing screen with the phone only, mobile, from my mobile. Ashok ji, it is taking some time. It's taking some time. I think my net is also slow, but. ठीक है सर, आप शेयर कर दीजिए. Meanwhile, I'll take. हाँ जी, no mom. जब होता है, we'll come back to you. Krishan ji, we have got a one of the very promising person who has been coming every day on the net. His name is Mr. Aniram from Punjab. Very good. He has been participating. No, yes, he's there. I could see him. I'm trying to get him on online. Anirban is there. If you can unmute him till the time. Banerjee. Yes. He's there. Please unmute him. तब तक screen share होती है. We will get him online. We will give him a chance to speak. Anirban Banerjee is one of the coaches of Assam Fencing Association, and अगर आप असम की डेमोग्राफी को जानते हैं, he is running a very good academy in a place called Tinsukia. Very vibrant and full of energy this coach. Anirban, आप हर रोज इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं. अगले 1 मिनट में I would request you just tell कि how you are feeling. 1 मिनट में आप मेरी रिक्वेस्ट आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो people will be able to understand ज्यादा. Over to you, Anirban. 1 मिनट अपने please tell your opinion. Thank you. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइको और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाइको. हमारे जो प्रेसिडेंट है राजीव मेहता सर, हमारा सेक्रेटरी जनरल बशीर अहमद खान सर, एंड हमारा जो ट्रेजरर है अशोक दुधारे सर, एंड हमारा सीईओ फाइक जो है उनको भी, तो जून सेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारा विक्रम सिंह जवाल सर, आपको भी धन्यवाद देता हूँ. जून सेशन बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल सेशन है. इसमें क्वेरीज पूरा क्लियर हो रहा है सर. थैंक्स टू ऑल कोचेस जो सिखा रहा है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. बहुत सारा चीज हमको सीखने को मिल रहा है सर. और मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, स्टे होम, सेफ होम. Thank you, Arinban. Thank you very much for your words. Please keep motivating. आपके fences बहुत अच्छा कर रहे हैं. Before we come to Ashok ji, I just want to tell you we have got so many good players from Bangladesh also logging in today. We welcome you all. We already have a players from Nepal and other countries. Without much time, over to Ashok ji. Thank you. Thank you. My screen is visible to you, all of you? Yes. Okay, I'll start with the foil. I give the heading as a foil and introduction to the basic weapon. First, we'll go with the foil. What is foil? Its definition. I'll define the foil. Foil is a thrusting weapon without cutting edge.
हम सब जानते हैं बिना कटिंग एज के फॉइल एक थ्रस्टिंग वेपन है। द ब्लेड इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन, ब्लेड जो है रेक्टेंगुलर होता है सेक्शन में। इट इज सेड दैट दोज हु विश टू मास्टर इपे हैव टू प्रैक्टिस फॉइल। ये कहा गया है कि जो मास्टर होना चाहते हैं या फेंसिंग में एक्सपर्ट होना, ईपी फेंसिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, वो फॉइल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो लिमिटेड टारगेट पर होता है और ईपी का टारगेट बड़ा है इसलिए, और फॉइल बेसिक वेपन भी है, दैट्स व्हाई आल्सो fencers score a point by hitting their opponents within rules and conventions of the foil fencing. फेंसर जो है फॉइल फेंसिंग में इसकी कन्वेंशन और नियमों के आधारित ही पॉइंट स्कोर करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वेपन इन टर्म्स ऑफ यूजेस इन कंपटीशन एंड इन यूजुअली द चॉइस फॉर एलिमेंट्री क्लासेस फॉर फेंसिंग इन जनरल। ये बहुत ही सामान्य जो है वेपन रहा है, समय समय पर यूज होता रहा है और एलिमेंट्री क्लास में आता है, क्यों प्राइमरी में, किस लिए? क्योंकि इस वेपन में वो जो दो खूबी हैं, ये ईपी की तरह थ्रस्ट करता है और इसमें जो है सैबर की तरह कन्वेंशन भी हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। नाउ विल मूव टू the parts of foil. If you'll see, here are the parts of the foil. There is pommel, forte. I'll tell you the blade parts only, because these will be pronounced or time to time for the conventions by the coming up speakers also. Forte part क्या है? जो blade के नजदीक का part है, 1/3 पार्ट। मिडल पार्ट ब्लेड के सेंटर में है, मिडल पार्ट हियर इज, एंड foible. First is point, if you will see from here, point, then foible 1/3 part, then middle part, and then forte part of the blade. Then guard is there, then pommel, handle, and socket, etc. So we'll move for the foil dimensions. These are the foil dimensions. The total weight of the foil ready for use must be less than 500 grams. Less than, ये ध्यान करने की बात है। तकरीबन हम कहते हैं तो बोलते हैं कि 500 ग्राम नहीं, ready for use must be less than 500 grams. और प्रेशर जो हिट स्कोर करने के लिए चाहिए वो 500 ग्राम के ऊपर चाहिए टू प्रेस द स्प्रिंग। द टोटल मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फॉइल इज 110 सेंटीमीटर। फॉइल ब्लेड मैक्सिमम लेंथ 90 सेंटीमीटर है। फॉइल ब्लेड की अगर हम बात करें, गार्ड से आगे का जितना पार्ट है आप देख रहे होंगे, वो फॉइल ब्लेड 90 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉइल ब्लेड इज 5.5 to 9.5 सेंटीमीटर। और जो कर्व है वो हमें अलाउड है लेस देन 1 सेंटीमीटर। हियर ऑल्सो कंफ्यूजन है कि भाई 1 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 1 सेंटीमीटर कर्व जो, एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म। ये कर्व यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपके गार्ड से लेकर और पॉइंट तक। Insulation on the foible of point d'arrêt. Point d'arrêt जो हमारा पॉइंट है उस पे इंसुलेशन, ये मैंने दिखाया है, इंसुलेशन जो होती है वो 15 सेंटीमीटर है, पॉइंट d'arrêt से लेकर लास्ट तक। foible part, diameter of the guard, diameter of the guard foil का 9.5 to 12 सेंटीमीटर है। Now valid target area in foil. This is in foil fencing, the target area is
defined by a jacket or metallic material worn over the torso. टॉर्सो पर जो मेटेलिक है, आप देख रहे होंगे रेड कलर में जो मेटेलिक जैकेट है, उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है फॉइल का टारगेट. द टारगेट एक्सक्लूड्स द लिम्स एंड द हेड. लिम्स, लोअर लिम और अपर लिम और हेड को छोड़कर बाकी का पार्ट जो है टारगेट एरिया है. इट कन्फाइंड टू द ट्रंक बीइंग द कॉलर अप टू 6 सेंटीमीटर. और इसमें ट्रंक पोर्शन जो है वो इंक्लूड है सारे का सारा, जिसमें कि कॉलर के ऊपर तक 6 सेंटीमीटर प्रोमिनेंसेस ऑफ द कॉलर बोन, कॉलर की जो कॉलर बोन है उनके 6 सेंटीमीटर अबव तक. It also includes the part of bib beneath a horizontal line 1.5 to 2 centimeter below the chin. ये इसमें बिब का पार्ट भी टारगेट का एरिया है. आप देख रहे होंगे मास्क का भी थोड़ा सा पार्ट रेड है, हियर इज. तो मास्क का बिब भी टारगेट का एरिया है, जो कि चिन से 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे तक होता है. नॉट टू बी लोअर देन लाइन ऑफ द शोल्डर्स इन एनी केस. और शोल्डर्स की जो लाइन है उनसे नीचे किसी भी केस में उनसे नीचे नहीं होगा. अपार्ट अबव टचिंग एनीवेयर एल्स इज काउंटेड एज ऑफ टारगेट. इसके अलावा इस जैकेट और ये टारगेट एरिया जो रेड में शो किया गया है, इसके अलावा अगर कहीं भी कोई टच करता है तो उसे ऑफ टारगेट माना जाता है, वो थ्रस्ट नॉन वैलिड होता है. I'll not take too much time for the third slide. It is specific gears for the foil fencing. हमने ईपी में भी ये देखे थे. सिर्फ we have a glance for foil specific only. उन्हीं पे हम एक बार एक नजर डालेंगे जो सिर्फ foil specific हैं. बाकी के तकरीबन ईपी में भी. फर्स्ट इज मास्क. You can see the bib, and hand glove, jacket. जैकेट और ब्रीचेस का मैं बता दूं 800 न्यूटन जो है क्लॉथिंग में हमें एक प्रोटेक्शन दिया गया है. अंडर आर्म प्रोटेक्शन के लिए और प्लेस्ट्रॉन होता है. कंडक्टिव जैकेट है हमारी, और इस कंडक्टिव जैकेट के पीछे एक कॉलर फ्लिप होना चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर का, जिस पे हम बॉडी वायर, जिस पे हम कनेक्टर जो है मास्क वायर कनेक्ट करते हैं. बॉडी वायर है, देन मास्क वायर है. मास्क वायर इज हियर 30 to 40 centimeter in length. And weapon है, fencing shoes है, and stockings. These are the fencing gears. We'll move to the clothing. कुछ थोड़ी सी जानकारी क्लॉथिंग के बारे में देना चाहूंगा फॉइल की. The rules lay down that the fencer must be dressed in white from head to foot. हेड से लेकर और सिर तक व्हाइट में ड्रेस्ड होना चाहिए. एंड द जैकेट मस्ट ओवरलैप द ब्रीचेस बाय एट लीस्ट 10 सेंटीमीटर एट द वेस्ट. जो ब्रीचेज है उसको जैकेट ओवरलैप करना चाहिए कम से कम 10 सेंटीमीटर. एंड अंडर प्लास्ट्रॉन शुड बी वॉर्न अंडर द जैकेट. और अंडर प्लास्ट्रॉन जो है वो जैकेट के अंदर पहने हुए होना चाहिए. This provides extra protection under the sword arm and part of the chest and back. ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अंडर आर्म खासकर जो है फॉइल जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है अंडर आर्म, तो जरूरी है प्लास्ट्रॉन पहनना. ब्रीचेस मस्ट फास्टन अंडर द नीज एंड लॉन्ग सॉक्स मस्ट कवर द लेग्स. ब्रीचेस जो है घुटनों से नीचे तक होनी चाहिए और लॉन्ग सॉक्स पहननी है. जैकेट फॉर वुमेन हैव पॉकेट्स फॉर चेस्ट प्रोटेक्टर्स. उनके लिए स्पेशल जो बनाए गए हैं चेस्ट प्रोटेक्टर, उसके लिए पॉकेट होनी चाहिए.
and these should always be used, और ये हमेशा यूज प्रयोग में लानी चाहिए. One glove is worn on the sword hand and this has a long cuff. इसका long cuff होना चाहिए. glove हम पहनते हैं to cover jacket sleeves at least halfway between the wrist and the elbow. elbow और wrist के बीच तक उसका cuff होना चाहिए. metallic jacket limit must overlap the top of the folds of hip when fencer is in the on guard position. जब हमारी जो मेटेलिक जैकेट है, इलेक्ट्रिक जैकेट है, वो हमारे टॉप ऑफ फोल्ड जो दोनों बोन्स हैं दोनों साइड पे, उनको कवर करनी चाहिए. तब किस पोजीशन में? जब फेंसर ऑन गार्ड पोजीशन में हो. नहीं तो वो साइज छोटा माना जाता है जैकेट का. क्लोथिंग इज, मैंने पहले भी बताया था, क्लोथिंग इज साइज डिफरेंटली फॉर चिल्ड्रंस and is based on their age and the measurement of their chest, weight, height, head and hand. Weapons are also shorter and lighter for youngsters. Blades size chart as we discussed earlier in the EP. हमने EP में जो डिस्कस किया था क्लोथिंग, और वो उनके लिए. Now there are few terms which are used in प्रयोग में जो टर्म्स लाई जाती हैं मैं उनको बताऊंगा. जो टर्म्स ईपी में थी मैंने उनको छोड़ दिया है, जैसे पिस्ता, पिस्टे, स्ट्रिप एंड गार्ड एटसेट्रा. फॉइल इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड फ्लेरे एंड एड्स, दैट इज AIDS, द लास्ट 3 fingers ऑफ द वेपन आर्म. फॉइल में बहुत जरूरी है स्ट्रांगली, क्योंकि फॉइल एक बहुत ज्यादा डिफेंस जो है फॉइल वेपन में काम आता है, इसलिए मैंने ये तीनों फिंगर का काफी रोल बढ़ जाता है, इसलिए आपको ये भी बताया. मैनिपुलेटर इज थंब एंड इंडेक्स फिंगर. दिस आर द मैनिपुलेटर. इनसे हम फाइनेस्ट जो है वेपन कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल करते हैं. फिंगर प्ले, ए मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वेपन विद फिंगर्स इज कॉल्ड फिंगर प्ले. सेंटिमेंट डू फर, द यूज ऑफ द tactical senses of finger, feel of the blade. Counter attack, counter attack. Areth, stop it. Arrow, fletch. Breaking ground, stepping back. जब हम ground lose करें, that is breaking ground. Broken time, a little pause in an action but finishes in one moment. एक pause होता है हमारे, broken time है, एक pause होता है एक्शन के बीच में, बट वो एक ही फेंसिंग मोमेंट में खत्म होता है. किसी ने अगर सिंगर को सुना होगा, मेरे को एक याद आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, ब्रोकन टाइम का. एल्विस एक सिंगर है, आप कभी जाएंगे उस पे देखेंगे तो ही यूजुअली यूज्ड टू स्टॉप सडनली, जस्ट लाइक दैट, नथिंग इज गोइंग हैपन. कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे एकदम से रुक जाते हैं रिदम के बीच में, एंड देन अगेन ही स्टार्टेड. सो ये ब्रेकिंग टाइम, ब्रोकन टाइम जो है वो बहुत जरूरी है फॉइल फेंसर के लिए भी, और इवन सेवर, आई कैन से इन ऑल 3 एज वेल वेपन्स. बटमन इज बीट. cadence is the rhythm in which sequence of movement is made. जो सीक्वेंस होता है मूवमेंट्स का उसे कैडेंस कहते हैं. कॉर, when 2 fencers are in body contact, that is कॉर. कंटिन्यूएशन, prolonged offensive action. जो ऑफेंसिव एक्शन प्रोलॉन्ग होते हैं, मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे रीडबलमेंट, रिमीज, जिनमें प्रोलॉन्ग करते हैं, लंबा समय लेते हैं, दैट इज वो कंटिन्यूएशन में. ग्लैंस इज प्रोलॉन्ग प्रेशर में डिसआर्म द ओपोनेंट. आपका बहुत प्रोलॉन्ग लंबा प्रेशर है ब्लेड पर, जिससे कि ओपोनेंट का ब्लेड उसके हाथ में नहीं रहता, वेपन हाथ में नहीं रहता, दैट इज ग्लैंस. फॉइल प्रायोरिटी, the conventions, the rules governing the method of the foil fencing. convention क्या है? जो foil fencing के मेथड को गवर्न करती है. gaining ground, stepping forward. हम gaining ground है जब step forward करते हैं, ground gain करते हैं. simultaneous is simultaneous.
resemblement, the bringing the both feet together either forward or backward so that the heel are touching with the feet at right angle, that is resemblement. Trumpment, the deception of the opponent's attempt to parry, opponent जो parry करता है हम उसको deceive कर देते हैं parry को, that is trumpment. No volley is not valid, a not valid thrust. We'll move to the next basic on guard. On guard के बारे में पहले भी काफी हम ईपी में भी कर चुके हैं, कृष्ण कोच साहब ने भी कुछ बताया था, बाकी मैंने ईपी में भी बताया था. विल गो ऑन द, दिस इज बेसिक ऑन गार्ड. स्पेसिफिक फॉइल का मैंने ऑन गार्ड आगे लिया है, ये बेसिक ऑन गार्ड है. बेसिक ऑन गार्ड पोजीशन है. ऑन गार्ड is the readiness position for footwork and partner work with and without weapon, bout and individual lesson. So in foil on guard, the distance between feet as well as flexing of the legs are slightly increased in comparison to the on guard in épée and sabre as well. तो foil में थोड़ी सी लेग वो खुले रहते हैं épée और सेवर ऑन गार्ड की बजाय. द रूलिंग ऑफ द 1908 गिव्स कमिंग टू ऑन गार्ड 5 to 7 स्टेप्स, 5 से 7 स्टेप दिए गए हैं. 1908 की जो रूलिंग है हमारी फुटवर्क की, उसमें क्या था कि पैर जो है 1.5 फीट अपने 1.5 फीट थोड़ा सा उतना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में. दोनों 1.5 आपके अपने पैर का अगर है, एक और आधा पैर जो है उतना डिस्टेंस होना चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए. वो पोजीशंस हैं बेसिक ऑन गार्ड की. सो वो हमने ईपी में भी डिस्कस की थी. I'll move on the next slide, that is grip. Grip in the foil. देखिए अशोक जी, आप जरा पीपीटी को थोड़ा जूम आउट कर दीजिए. एक जूम आउट कर देंगे तो ज्यादा दिखेगा, और अगर आप फुल स्क्रीन में कर देंगे शेयर तो सर शायद उसमें भी हो जाएगा. राइट. I'll share in the full screen. ये दूसरे स्क्रीन में चला गया. It is better. Yes, it is better. Yes. It is better. The grips and holding the weapon, very important again. There are a starting number of grips. तकरीबन 90% जो है ऑर्थोपेडिक ग्रिप यूज होती है, इसलिए मैंने पहले वो लिया है. 90 to 95 यू कैन से फॉइल में तो तकरीबन सारा ही ऑर्थोपेडिक ग्रिप यूज होता है. वी यूज टू से पिस्टल ग्रिप्स. There are a starting number of foil grips available. Each general type tends to have advantage or disadvantage. हर एक टाइप का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. पिस्टल ग्रिप पहला ग्रिप है आपके सामने. पिस्टल ग्रिप में वैसे नाम मेरे से पहले ग्रिप के पूछे थे. पिस्टल ग्रिप के मैं 2-3 नाम ले देता हूं जो स्लाइड में भी नहीं है. दैट इज विस्कॉन्टी, बेल्जियन, रशियन एंड हंगेरियन. These are पिस्टल ग्रिप के ही हैं. इनमें थोड़ा बहुत साइज का फर्क होता है, कहीं हैंडल थोड़ा सा हेवी होता है, कहीं लाइट होता है. वो these are the name of the grips. So advantage of the pistol grip is popular and frequently used worldwide. ये पॉपुलर है और फ्रीक्वेंटली यूज होती है वर्ल्ड पूरे विश्व भर में. प्रोवाइड सेट ग्रिप फॉर द बैक फिंगर्स. देखिए फॉइल में डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है. जितने पॉइंट ऑफेंसिव मूव्स के साथ आते हैं वो मैं कहूंगा उतने ही या उससे ज्यादा डिफेंसिव मूव्स में भी आते हैं. तो जो हमारी बैक तीनों फिंगर हैं वो सपोर्ट करती हैं हमारी पैरी को. सो प्रोवाइड अ सेट ग्रिप फॉर बैक 3 फिंगर्स. पिछली तीनों फिंगर्स के लिए ये एक सेट ग्रिप प्रोवाइड करता है पिस्टल ग्रिप. द शॉर्टर ग्रिप्स मेक द आर्म रिस्ट पोजीशन. शॉर्टर जो है ग्रिप है वो पोजीशन करने में, आर्म देने में, खासकर क्लोज क्वार्टर में जो है ये हमें फायदा देती है. गुड एट द क्लोज क्वार्टर, ग्रेट असिस्ट इन फ्लिकिंग. फ्लिक अटैक्स भी फॉइल में है
उनमें भी इससे काफी मदद मिलती है इस ग्रिप से। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं ड्यू टू लिमिटेड टारगेट, पॉइंट कंट्रोल इज सो क्रिटिकल, यूज ऑफ द बैक फिंगर्स एट द रॉन्ग टाइम इंटरफेयर द पॉइंट प्लेसमेंट। ये तीनों फिंगर हमारे उसके लिए तो डिफेंस के लिए तो अच्छी हैं, बट पॉइंट कंट्रोल के लिए मैनिपुलेटर ही अच्छा है। और इस ग्रिप में एक यही है, जब हमें प्रेसाइज टाइम पे पॉइंट का कंट्रोल करना हो, उस टाइम पे कई बार ये तीनों फिंगर इंटरप्शन करती हैं और हम पॉइंट को बहुत अच्छे से एफिशिएंट वे में प्रयोग नहीं ला पाते जितना कि फ्रेंच ग्रिप में हम कर लेते हैं। पॉइंट कंट्रोल में बी स्लोअर टू कम विद द पिस्टल ग्रिप। पिस्टल ग्रिप के द्वारा जो है ना पॉइंट कंट्रोल स्लोअर आता है, तो बिगिनर अगर बच्चा है तो अगर पॉमेल हैंडल या उसके साथ अगर पॉइंट का कंट्रोल करेगा तो फिंगर मैनिपुलेटर का यूज अच्छा होगा। ये एक डिसएडवांटेज है, इससे थोड़ा देर में आता है, रिस्ट घूमती है पूरा, उससे हम पॉइंट का कंट्रोल लीजिए। If you are using a pistol grip properly, it shouldn't be too difficult to shift from one type to another. अगर हम पिस्टल ग्रिप यूज कर रहे हैं तो ये हम आराम से उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। And we'll move to the next slide, that is French grip. French grip, whereas advantages and disadvantages हैं French grip के। This is French grip, or straight and lengthy enough to fit the hand. Straight है, lengthy है, fit रहती है, हाथ में fit होती है, good finger control होता है, manipulators जो हैं उनका अच्छा प्रयोग होता है इससे, like disengagement और feint attacks वगैरह काफी अच्छे इस grip के help से होते हैं। Helps the fencer to improve point control. अगर किसी फेंसर का हमारे बेसिक पॉइंट कंट्रोल अच्छा नहीं है तो हम उसे ये ग्रिप देके, चाहे वो पिस्टल यूज कर रहा है, इससे देकर हम उसका पॉइंट कंट्रोल की प्रैक्टिस उसे करा सकते हैं। बेटर फील ऑफ द ब्लेड, और ये ब्लेड की बेटर फील देता है क्योंकि ऐसे ही स्ट्रेट है जैसा पूरा ब्लेड स्ट्रेट है, और हम जब ऑन गार्ड में भी एल्बो से लेकर और पॉइंट तक एक सिंगल लाइन बनाते हैं, इसलिए ये स्ट्रेट है और इसमें ये हमें ब्लेड की रियल फीलिंग देता है जैसे कि हमने ब्लेड ही पकड़ा। डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग येट कंट्रोल्ड हैंड। स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड हैंड चाहिए इसको थोड़ा सा, उससे पुअर एक्शन ऑफ डिलीवरी इन क्लोज क्वार्टर। क्लोज क्वार्टर में पुअर डिलीवरी है, जब हम क्लोज क्वार्टर में फाइट में आते हैं तो इससे हम क्लोज क्वार्टर में हिट करने में हमें परेशानी होती है। अटैक्स ऑन द ब्लेड टेंड टू बी हार्डर रिकवर फ्रॉम फ्रेंच ग्रिप। फ्रेंच ग्रिप के अगेंस्ट जब दूसरा फेंसर जो पिस्टल हैंडल वाला अगर अटैक ऑन ब्लेड करता है, अटैक ऑन ब्लेड होते हैं, मैं आपको बता दूं, बीट, प्रेशर एंड फ्रेजमेंट। फ्रेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीट एंड प्रेशर। सो इनके ये जो एक्शन है इनमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज रहती है ये ग्रिप होल्ड करने में। Some considerable facts regarding grip. देखिए कुछ considerable facts हैं what I felt. First, the correct execution of all the offensive and defensive actions is dependent on the correct grip of the weapon. How to hold our foil can dictate our actions and even our tactics. जो सही तरीका है सारे ऑफेंसिव और डिफेंसिव एग्जीक्यूशंस एग्जीक्यूट करने का, उनमें सही तरीके से ग्रिप को पकड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और सही तरीके से ग्रिप पकड़ना हमें डिक्टेट करता है हमारे सारे एक्शंस की टैक्टिक्स और टेक्निक में। देखिए फर्म ग्रिप, जब हम स्ट्रॉन्ग पकड़ते हैं ग्रिप को, क्या होता है, नॉट टू बी एबल टू फील द ब्लेड, हम ब्लेड और पॉइंट को फील नहीं कर पाते हैं। यूज ऑफ द मैनिपुलेटर, फर्म ग्रिप जब पकड़ते हैं तो मैनिपुलेटर का यूज भी
उसमें भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। लार्जर हैंड रिस्ट मूवमेंट्स जो रिस्ट की हैं वो बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं जब हार्ड पकड़ते हैं। पॉइंट कंट्रोल जो है वो टफ हो जाता है, पॉइंट का कंट्रोल नहीं रहता है। स्लोअर इन पॉइंट मूवमेंट, और पॉइंट की जो मूवमेंट अगर आप स्पीड देखेंगे एक्शंस में वो भी कम होती है हमारी। हार्डर एंड समटाइम्स ब्रूटल लैंडिंग ऑफ द पॉइंट, और कई बार क्या होता है बहुत हार्ड हिट जाते हैं, रैश और ब्रूटल भी होते हैं, हिंसा से भरे हुए ब्रूटल। अ करेक्ट एंड रिलैक्स ग्रिप, वेरएज अगर करेक्ट और रिलैक्स ग्रिप है तो अलाउ फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द ब्लेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, बिना स्पीड को गवाए हुए हम मैनिपुलेट करते हैं ब्लेड को। पॉइंट कंट्रोल बहुत स्मूथ होता है। अलाउ स्नैप द पॉइंट टू अवेलेबल टारगेट जहां भी अवेलेबल होता है हम वहीं पे स्नैप कर सकते हैं, वहीं पे हम हिट कर सकते हैं। The proper use of grip facilitates the disengagement, better control of parries and ripostes as well. जो proper use है grip का वो हमें क्या क्या देता है disengagement करने में, even parries के better control में और riposte deliver करने में। Here is the correct way how to hold the grip. वो हाथ के साथ होना चाहिए, पोमल में ये रिस्ट के साथ में होना चाहिए। कई बार ये पोमल उठा होता है। करेक्ट एंड इनकरेक्ट ग्रिप आई हैव गिवन हियर फॉर योर रेफरेंस। एंड नेक्स्ट इज द फर्स्ट पोजीशन एंड सल्यूट। द इंपॉर्टेंट पार्ट, द फर्स्ट पोजीशन। व्हाट इज फर्स्ट पोजीशन? द पोस्चर assumed by the fencer with his body एंड वेपन बिफोर द सैल्यूट। सैल्यूट से पहले जो पोस्चर अज्यूम करता है फेंसर, उसमें दोनों पैर एक साथ होते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन में आप देखेंगे दोनों पैर एक साथ हैं। ये पुराने टाइम में ट्रेडिशन था, ऐसे फर्स्ट पोजीशन में खड़े होते थे और यहां से सैल्यूट करते थे। दैट इज फर्स्ट पोजीशन। और यहां से सैल्यूट बना है, उसके तरीके आए हैं कि कैसे सैल्यूट करना है। क्या है सैल्यूट? व्हाट इज सैल्यूट? दिस इज एन एक्ट ऑफ कर्टसी टुवर्ड्स योर ओपोनेंट, रेफरी एंड स्पेक्टेटर्स। यह जो है एक कर्टसी है अपने ओपोनेंट, और ये हमारा ट्रेडिशन भी है फेंसिंग का, और ये ओपोनेंट के प्रति कर्टसी है, रेफरी और स्पेक्टेटर्स के प्रति। अबाउट एंड लेसन ऑलवेज स्टार्ट्स एंड फिनिशेस विद द फेंसिंग सैल्यूट। एक बाउट जो है वो हमेशा या बाउट या चाहे लेसन भी हुआ वो सैल्यूट के साथ शुरू होता है और सैल्यूट के साथ ही खत्म होते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन कैसे सैल्यूट करते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन फॉइल इज ब्रॉट इन लाइन। फर्स्ट पोजीशन से लाइन में लेके आया जाता है फॉइल को। द आर्म इज ड्रॉन बैक, और सीधा किया जाता है बिल्कुल स्ट्रेट ब्लेड को। द आर्म इज ड्रॉन बैक टुवर्ड्स बॉडी अंटिल फोर आर्म एंड ब्लेड फॉर्म ए वर्टिकल लाइन, और फिर बॉडी की तरफ वापस आर्म को खींचा जाता है जब तक कि फोर आर्म और ब्लेड एक वर्टिकल लाइन नहीं बना लेते। बेल गार्ड लेवल्स द चिन, यहाँ पे चिन पे बेल गार्ड लेवल द चिन एंड ब्लेड इन फ्रंट ऑफ आई। मैंने आई लिखा है, आईज में, इसका एक रीजन है। बेल गार्ड जो है हमारा चिन के लेवल पर होगा, और ब्लेड आई लेफ्ट हुआ राइट हैंडर फेंसर है उसकी राइट आई के सामने होगा, लेफ्ट हैंडर है लेफ्ट हैंडर, क्योंकि हमारा जो पोस्चर है वो ज्योमेट्रिकल इन डिजाइन है। 90 डिग्री पर पैर होते हैं और बॉडी 45 डिग्री पर होती है, सो इसलिए आई के सामने रहना चाहिए। आर्म इज एक्सटेंडेड एंड द वेपन कैरिड इनटू द लाइन अगेन, और इसके बाद दोबारा से लाइन जो है आर्म जो है एक्सटेंड की जाती है और वेपन को दोबारा से लाइन में लाया जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट अ सैल्यूट। और इसी तरीके से ये ओपोनेंट को किया, इसी तरीके से हम सैल्यूट करते हैं रेफरी को और स्पेक्टेटर्स को। अशोक जी, अगर टाइम हो गया तो अनदर 3 minutes विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। आप एक खत्म करके मेरे को बता दीजिए, और जब भी आप इस स्लाइड के बाद हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड विल गो फॉर बेसिक, जितना भी है बेसिक्स में वी आर लर्निंग बेसिक ऑफ फॉइल। ठीक।
और इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर कि ये आप जूम आउट इन आउट नहीं करें, जो अभी आपने कंटेंट दिखाया दिस इज मच बेटर, पीपल कैन रीड इट। ओके गुड, इसी में रखिएगा सर, इसी में। राइट राइट, हाँ, इट्स ओके। कमिंग ऑन गार्ड व्हाइल फेंसिंग फॉइल, ये ऑन गार्ड है जब आप पिच पर आते हैं, और हैंड पोजीशन तब कैसे काम आती है, वो बेसिक ऑन गार्ड था आपका फुटवर्क के लिए, और ये है जब हम फेंसिंग करने के लिए, फेंस करने के लिए तब आते हैं। The on guard is the position that allows a foil fencer to be ready for attack. देखिए इसमें फर्क किया है मैंने ईपी और फॉइल वाले में। The on guard position that allows a foil fencer, foil fencer को अलाउ करता है to be ready for attack, defense and counter attack. Whereas ईपी में क्या है, attack, counter attack and defense. Defense थर्ड पे जाता है, तो here is attack, defense and counter attack. Counter attack third पे है, last list priority पे है. The on guard is the position that allows a foil fencer to be ready for attack. On guard position वो position है जो एक foil fencer को तैयार रहने में सहायता करती है अटैक के लिए, डिफेंस के लिए और काउंटर अटैक के लिए. Precise execution of all fencing actions and movements depends on its correctness. और इसके सही होने पर ही आपका आधारित है सारे के सारे फेंसिंग एक्शंस का, चाहे वो ऑफेंसिव हो, डिफेंसिव हो या काउंटर अटैक हो, उनके एग्जीक्यूशन ठीक होने पर. हैंड पोजीशंस इन द अनगार्ड. अब देखिए देयर आर टू बेसिक अनगार्ड. मैंने दो बेसिक अनगार्ड इसमें भी दिए हैं, ईपी में दिए थे, बट विथ स्लाइट डिफरेंस. आप देखेंगे हियर इज देयर आर टू बेसिक अनगार्ड पोजीशंस. वन इज द स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड है, दो बेसिक अनगार्ड पोजीशन है. स्टैंडर्ड क्लोज्ड पोजीशन, क्लोज पोजीशन है. इन दिस इज वन ऑफ द फेंसिंग पोजीशन इन विच आर्म इज बेंट एट द एल्बो एंड वेपन पॉइंटिंग योर ओपोनेंट्स एंड द गार्ड कवरिंग योर आउटसाइड हाई लाइन. हमारी आउटसाइड हाई लाइन को हमने आउटसाइड हाई लाइन, इनसाइड हाई लाइन, लो लाइन ये ईपी में देखा था, इसमें आगे भी है. हमारी आउटसाइड हाई लाइन को कवर करता है. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड. और क्लोज में बहुत से फेंसर आपने देखे होंगे सीधा वर्टिकल थोड़ा सा अप हाई अप 45 डिग्री पे ऊपर ब्लेड रखते हैं पॉइंट. और सेकंड वन इज ओपन पोजीशन. यूज ये दूसरे स्किल्ड फेंसर्स के लिए यूज की जाती है. आपने देखा ओपन गार्ड क्या है, जब एक बार तो ऑन गार्ड पोजीशन खड़ा हो गया फिर वो नीचे रखते हैं पॉइंट को, वो ओपन है, उसने टारगेट ओपन रखा है. जैसे हम बॉक्सिंग में कहते हैं ना गार्ड और बिना गार्ड के, आपने बॉक्सर्स को भी देखा है, कोई ओपन गार्ड खेलता है कोई, तो वो ओपन गार्ड है. हम फॉइल को नीचे रखते हैं, टैक्टिकल उसका प्रयोग भी है और स्किल्ड फेंसर्स के अगेंस्ट वो प्रयोग किया जाता है. और इसमें हाथ जो है थोड़ा सा खुला रहता है, बट इसकी ओपन गार्ड की जो है उसमें बीच जो है वो क्वाइट फ्रीक्वेंटली है. अगर हम आगे और ओपन थोड़ा सा नीचे रखेंगे दूर, उसमें बीट या दूसरे जो एक्शंस थे अटैक ऑन ब्लेड, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. कीपिंग आर्म बैक, अ स्ट्रेटेजी टू वेट फॉर. ये एक स्ट्रेटेजी है, कीपिंग आर्म बैक, पीछे रखते हैं, कुछ लोग पीछे रखते हैं काफी, टू प्रोवोक एन अटैक वेरी स्ट्रांगली विद द, जो डिफेंस में ज्यादा स्ट्रांग है वो थोड़ा सा पीछे रखते हैं, वो प्रोवोक करते हैं ओपोनेंट को. और ब्लेड कंट्रोल जो है ड्यूरिंग क्लोज ऑफ द डिस्टेंस एंड डिलीवर अ रिपोस्ट विदाउट और मिनिमम रिलीज ऑफ द ब्लेड. ये ईपी का पार्ट है मिनिमम रिलीज, बट फॉइल में रिलीज करके टच करते हैं, पॉइंट रिलीज करके टच करते हैं. बट डिफेंस जो है वो ऑब्वियसली डिफेंसिव फेंसर जो होता है वो थोड़ा सा आर्म बैक रखता है. बॉडी पोजीशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. बॉडी पोजीशन बिल्कुल एकदम से सही होनी चाहिए. अगर आपका शोल्डर सामने है तो फ्लिकिंग इतनी फ्रीक्वेंट है फॉइल फेंसिंग में, अगर आपका शोल्डर जैसे ही अगर हम स्ट्रेट आएंगे 45 डिग्री एंगल से तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए बॉडी पोस्चर ठीक होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट द क्लासिकल पोजीशन ऑफ हैविंग द बैक शोल्डर वे बैक, ये हम छोड़ देते हैं, हमने ईपी में भी पढ़ा था क्लासिकल. Now if you wish you can go for a question answer session, then I'll continue.
Thank you, sir. Please. Before we come to the question answer session, जब से question answer session में जाएं, I would request Krishan ji to unmute 2-3 people. First, the panel of referees we have with us Lohit and Deepak. They are foil experts for the day. We will not be giving all experts, all referees today. I will nominate them by day by. Like today it is Lohit and Deepak. Tomorrow I'll have 2 more referees, so that the time can be saved. Now, as you know that yesterday we had a class. कल हमारी class थी जो outside the fencing subject पे थी, which is more related to the behavior. There are so many classes coming up with foreign speakers. When we put question on the Facebook community or WhatsApp community or Facebook, aim is not to show my knowledge or tell your knowledge. Aim is to gauge ki what is the knowledge you have of that particular subject. Many of you are getting this feeling ki by these questions are being asked. These are all related to the future subject. Like we have got Mr. Peter Davies, one of the best coaches on the periodization of Australia, joining us in the month of second week of May. He asked me to ask these questions to you, and I must tell you, your response is good. A few people, all are not participating. There are 2 reasons: either you don't know or you're not taking interest. But it is my duty as a program coordinator, people who have been contributing, to highlight them, because most of us don't know everything. It is a learning is mutual. कल मैंने question पूछा था about training load and what are the reasons for training load. There are many answers I've got. I got an answer from Ganesh. I got an answer from Roshan. I got an answer from Carolina. I have got an answer from other people. They're senior. I have given a chance, but I was watching this girl from. I saw on the Zoom, her participation is on the Zoom community and Facebook page is very good. I wanted to give this chance because she's young and dynamic, and she's upcoming coach, you can say, who's taking a lot of interest. Her name is Akanksha. Akanksha, Krishanji, if you can get Akanksha online, please. If you can unmute her, then I come to the questions after this. Akanksha, can you listen to me? Akanksha? Sir, I'm not able to unmute her. Now she's unmuted. You can talk. Okay. Akanksha? Akanksha, am I audible? Akanksha, are you there? If she's not there, I'll go to the question proper. You keep trying, Krishanji, for that. The first question is for Ashokji only. Ashokji, can you give in 30 seconds? I have got 7-8 questions. Please, 30 seconds maximum. What is the importance of foil bib and why it is not used in India? There is a question from somebody. There's a lot of foil bib is bib. Let me tell you first. Bib was introduced in YFI in 2008 and 9 season from the June for seniors, and 2009-10 for juniors, for seniors 8-9. and bib का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि फ्लिकिंग जो अटैक्स थे, फ्लिक अटैक्स, वो तकरीबन कई बार लैंड करते हैं आपके कॉलर के साथ में यहाँ पर, और इससे टारगेट एरिया रिज्यूम होता है। और जब आप कई बार क्लोज क्वार्टर में जब ब्लेड नीचे करके आप टच करते हैं तो थ्रस्ट बिब पे आता है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो उसके प्रैक्टिस के हमें बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगी। और मैं इसके साथ साथ बताऊंगा कि बिब अभी जो है, बिब पहले अभी उसमें 1600 न्यूटन का जो वो आ रहा है रेजिस्टेंस, पहले कम आता था क्योंकि पीछे फॉइलिस्ट को काफी इंजरी हुई थी इससे, तो अभी मास्क में भी ये प्रोटेक्शन भी आ रही है बिब के लिए, और ये हाईली रिकमेंडेड है। हमें अगर स्टैंडर्ड आप करना है फॉइल फेंसिंग का, दे शुड नो टू यूज दिस टारगेट एज वेल। थैंक यू sir, thank you sir. Just be brief with answers. Sir, another question is, what is the maximum bend of the blade is authorized in foil? This question is by Dinah. Less than 1 centimeter. Okay, Dinah, it is less than 1 centimeter. And there is a question from Ankit Singh Rawat. What is the reassemblement means?
reassemblement I gave is it is there in the slide as well. Okay, we will share that, Ankit. We will not waste time on that. We will share the slide. It's Thambi there. Selvam बहुत से questions पूछ रहे हैं. Thambi Selvam has been asking some quality questions. One of the good questions he asked, which even I also don't know the answer. Right. Why foil guard is smaller than the EP guard? Why foil guard is smaller than the EP guard? I'll ask a question against question. Why point is smaller than why point is smaller than it is I think basically if I'll give the answer truly, foil का weight भी कम है और foil का target area भी कम है और बाजू को protect नहीं करना है. जो ये EP में हमारा ये guard जो है इसको protect करता है, वो prone to thrust जो injury है सामने से होने के ज्यादा chances हैं, जबकि foil में target area limited है, आपका torso only. Thank you, sir. Thank you. Thambi Selvam, the answer is that the smaller is the target of the foil, hence guard of the foil is also smaller. And moreover, foil is a traditional weapon and it used to be used for fighting in the war. And so, weight as well. Weight as well. So hence people decided at that time that the weapon and the weapon should be the lighter in the side in order to have more stamina to fight. This is one of the history related. Now I have got a question for Deepak. Krishan, if you can get Deepak online, please. He's there, sir. You can ask him. Before that, come to Deepak. We have got a national coach of Bangladesh joining us today. I welcome you. We have got a FI referee from Sri Lanka also attending this seminar, Gyan Bandara. Gyan, I welcome you. And it's so nice to see people from friendly foreign countries also attending. The Deepak question is for you. Sir. Is plastic protector mandatory for male foil fencers during the bout? जो male foil fencers हैं, उनके लिए plastic protector is mandatory. This is a question from Bangladesh. No, sir. According to FI rule, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि males के लिए plastic chest protector जो है वो mandatory है. But girls fencers के लिए it is mandatory. And उनको प्लास्टिक प्लास्ट्रॉन के साथ साथ जो है क्लोथिंग प्लास्ट्रॉन जो क्लोथिंग प्लास्ट्रॉन है वो भी पहनना जरूरी है. तो उनकी जो प्रोटेक्शन है वो 1600 न्यूटन्स हो जाएगी उसको पहनने के बाद. लाइक 800 न्यूटन्स प्लास्टिक एंड 800 न्यूटन्स जो कपड़े वाला हम प्लास्ट्रॉन पहनते हैं. Thank you. Second question is again for you. Glove is to be FI glove or normal glove is allowed in foil FI competitions? So glove hai, it has to have a FI stamp on it, or normal glove can also be used of like Chinese make manufacturing or something like that. Sir, foil and epee में अभी तक ऐसा कोई FI glove नहीं लॉन्च हुआ है या FI ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. ओनली फॉर सैबर फेंसिंग जो है अभी FI ग्लव्स इन FI कंपटीशन में यूज किए जा रहे हैं. Okay, thank you. Another question for Lohit. Lohit, can you listen to me? Yes, Colonel. The question asked is that in foil referee, when you're doing the refereeing a bout of foil, what all if a fencer who's playing, how you come to know that fencer is hiding his target? जब आप foil का bout करा रहे होते हैं, how you come to know कि fencer is hiding his target with non-playing hand? Well, during the bout, it is important that your left hand is behind. But yes, some fencer do keep it on the target area. But when there is combat which is going on, and intentionally when the left arm is on the target area, then it is clearly covering of target. Not just your left arm, but it is also your mask that comes in between. So when you are ducking, you can usually sit down. But if you are bringing your mask to the target area, that clearly means that you are covering the target. And your left arm also, that comes the way, during your parry action or while going back, if it comes at the target area, so that is clearly, covering of target. So you halt and you penalize the fencer. Got it. Lohit, got it. Second question is again related to that few fencers who have got a long hair, कुछ fencers के लंबे बाल होते हैं.
like especially girls fencers when they are playing, agar unke hair or baal they come on the electric jacket, what grade of offense it is? Well, see, during the bout, if it comes out, it is not an offense. You can say halt and warn the fencer and ask her to put back her hair, tie it properly, and put it back. But if a fencer is intentionally coming on the pist with the hair outside, then you can penalize with a yellow card. Thank you, Rohit. Krishanji, if we go to the second phase of the lesson, is Akanksha available? I just want you to highlight. Can she listen, or no? It's wait a minute, sir. Let me check. Okay. No, what Ashokji said during the like there's something called first hand when you do on guard and all those stuff. Why you salute fencer? Why you salute referee? Why you salute audience? Sir, I'm not able to unmute her. If you can unmute Roshan Thapa, he also gave some wonderful answers. Another wonderful coach, upcoming coach from Gujarat. Sure. हम कहते हैं कि the fencing में on guard के बाद salute करने से ritual and tradition. This has been made as a ritual and tradition. What I was telling you, what Sara was telling you yesterday, these are the core values of our game. This is what the core values you should have in your clubs, in your organization. Ki how, whatever different we do, finally we start with this and we end with this. I hope it will make you think clear. Please participate. Your participation is declining, and today we have just reached around 280 people. Roshan? Yes, sir. Good morning, Roshan, sir. I welcome you, and I must congratulate you. You are one of the brightest coach we have got in Gujarat, and you are doing very well under the guidance of your senior Anil, who is also there. Anil Yes, also sir, I'll yes, get subsequently. He deserves special respect. रोशन, आपने कल ट्रेनिंग लोड के बारे में और ट्रेनिंग रीजंस के बारे में कुछ बताया था. As a coach, I give you another 30 seconds to 40 seconds. प्लीज बताइए कि आप ट्रेनिंग लोड कैसे मॉनिटर करते हैं और आप कैसे देखते हैं कि फेंसर हैज गॉन टू ओवर ट्रेनिंग. ब्रीफ टू द क्रस्ट, नो एक्सप्लेनेशन. यस सर. जब बच्चा हमारे पास, क्योंकि मेरे पास हॉस्टल है, मेरे पास बच्चे दोनों टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो मैं उनके थ्रू उनकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जब भी हम बच्चों को लाइन अप करते हैं तो उनका जो जब हम इंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों को, तो उनका क्या इंटरेस्ट रहता है, कितना अटेंशन उनका रहता है जब हम इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे रहे हैं, तो उनके थ्रू हम जज कर सकते हैं. और उसके बाद जब भी हम कोई टास्क देते हैं, बच्चा ऑन फील्ड वो कर रहा है, तो हम देख के उसको जज कर सकते हैं कि ये इंटरेस्ट के साथ कर रहा है या नहीं. क्योंकि बाउट करना या कोई भी हम उसको सिचुएशन देते हैं तो नॉर्मली प्लेयर बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि नहीं वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो हम उससे जज कर सकते हैं कि वो आइदर वो लोड में है या उसका रिकवरी प्रॉपर नहीं हुआ है, तो हम उसके थ्रू उसको जज कर सकते हैं. थैंक यू. जो रोशन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि यू हैव टू हैव ए सिम्पटम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग सीन इन द किड. No, I have got Akanksha online. Akanksha, another 30 seconds. Please share your views on training load, what you wrote yesterday, and then overtraining. Over to you. Yes, sir. Good morning. Thank you, sir, for giving me a chance to speak. Actually, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि Yes, go ahead. We can listen you. Go ahead. Akanksha, go ahead. Can you listen? Okay, I think she has again gone cut. Never mind, we'll try and get you back again. We have got two more people coming up at 11:15 to us. First is Dr. Rajesh. He is the orthopedic specialist on fencing and in the Medical Commission of Fencing Association of India. He is about to join us. I'll introduce him later. Now, Ashok sir, over to you for the second phase of the lesson, sir. Thank you. Over to you. Now I'll discuss what was not discussed during the EP. The lines. मैंने lines को बताया था. High outside, low outside. आप फेंसर के लेफ्ट पे देख सकते हैं, हाई इनसाइड, लो इनसाइड.
फॉइल फेंसिंग में लाइन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो फ्लिकिंग आपने देखा होगा वो हमारे लेंथ करती है शोल्डर के पीछे, तो हाई आउटसाइड लाइन जो है वो पीछे की तरफ भी ट्रंक पोर्शन पर काफी, और जो है लो आउटसाइड लाइन में भी थ्रस्ट ज्यादा आते हैं। वेरस ईपी में जो सामने से थ्रस्ट ज्यादा रहते हैं, तो फॉइल में यहाँ भी थ्रस्ट हमारे ये एक महत्वपूर्ण जो है टारगेट एरिया बन जाता है। इसके राइट पे मैंने दिया है टारगेट पार्ट्स हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ द टारगेट टू डिलीवर थर्स्ट, फ्लिक, पैरीज एंड रिपोस्टे। ये सारे रिपोस्ट, ये सारे की सारी चीजों को ये रिफ्लेक्ट करेगा। एक आपका टारगेट एरिया है, 60 और टीयर्स दिया हुआ है, ऊपर क्वार्ट प्राइम दिया हुआ है, ऑक्टेव सेकंड दिया है, सेप्टिम क्विंट। इन जो है ब्लेड पोजीशंस के साथ, हाथ की पोजीशन के साथ यहाँ टच किया जा सकता है। यहाँ इन्हीं पोजीशन के साथ हम पैरी में रोका जा सकता है एक्शंस को। टीयर्स जैसे कि अगर आपके यहाँ शोल्डर पे जो फ्लिक आ रहा है तो उसको टीयर्स पोजीशन से ही रोका जाता है, ऊपर फॉइल में ये एक्शन रहता है। सो ये इसलिए सारी की सारी चीजें ये डिफाइन कर रहा है ये चार्ट के, यहाँ पे आप डिलीवर भी कर सकते हैं हिट उसी पोजीशन से, और उस पोजीशन से आप सेव भी कर सकते हैं रिपोस्ट, पैरी और हिट्स को। लो लाइन में ऑक्टेव और सेकेंडे है और सेप्टिम क्विंट है। विल मूव to next slide, that is footwork. Definition is almost same, so I'll not go to the definition, उसमें brief रखेंगे। फुटवर्क जो लीनियर एंडेवर है हमारा, स्टिप में हमें लिमिटेड जो है एरिया मिलता है और इसलिए सीधा फुटवर्क ज्यादा है, साइड टू साइड दूसरे स्पोर्ट्स के बजाय हमें कम मूवमेंट मिलती है। और फॉर्मूला मैंने बताया ही था जो फिजिक्स में है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज हाउ फास्ट वन ट्रेवल्स, वो मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। द की टू फुटवर्क इज कीपिंग द प्रॉपर डिस्टेंस। जो की है, जो हमारा सही में अगर प्रॉपर डिस्टेंस फुटवर्क से ही किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं फुटवर्क की, मैंने जो दी हैं बिगनर से आप शुरू कर सकते हैं। हाफ एडवांस, हाफ रिट्रीट, हाफ एडवांस स्टेप फॉरवर्ड, हाफ रिट्रीट स्टेप फॉरवर्ड, हाफ क्रॉस ओवर, बैकवर्ड क्रॉस ओवर, लॉन्च, क्लच, एपेल, बाउंस, then is advance, appel launch, the slide, the check, the jump forward. The check is also there. Maybe someone know about check or not, I don't know. There are two types of these actions. One is snap while we are going forward, and on the backward it is check. The jump forward, the jump backward, double advance, double retreat, advance launch, and jump launch. And there are the videos as well. If you wish, I can play the video for you. There are all these movements are covered. First is basic foot movements 1 to 10. In the first column you see there is link, you can go and you can check all the movements. Compound foot movements is on right side, and there is a link for all these compound. Complex footwork is the combination of various foot movements. वो नीचे कवर किया है हमने अगली स्लाइड में। Here is exercises for combination of foot movements for intermediate fencers. आप एडवांस पे भी वो बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने पूरा का पूरा सेट भी दिया है, ड्यूरेशन भी दिया है, कितने टाइम के लिए फुटवर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल बाउंसेस 1 मिनट, बाउंसेस एंड फॉरवर्ड एंड बैक 1 मिनट, ड्रमिंग few seconds, then squat 1 minute, drumming few seconds, then squat, drumming for few seconds, then squat and launch, squat and launch, bouncing advance plus bounces होते हैं टू एंड फ्रो, जो हम जंप करते हैं आगे पीछे, दैट इज बाउंसेस। उसके साथ में एडवांस है स्टेप फॉरवर्ड, बाउंसेस एडवांस,
and 3 times retreat, bounces plus double advance and 4 times retreat. Launch, focus on technique, launch, advance launch इसमें, and slow advance launch, fast advance launch, launch and advance launch, double advance launch. ये सारे के सारे एक्शन इसमें कवर्ड हैं वीडियो में. If I'll play, it will take lots of time for these exercises, because I have video in the another section as well. कृष्ण कोच साहब ने भी फुटवर्क के बारे में बताया, मैं भी पहले बता चुका हूं. तो ये इसलिए मैं ये जो जनरल एक्सरसाइजेज हैं इनको हम स्किप करेंगे. नंबर 2 इज लेवल 2 के लिए है. आप देखेंगे नीचे लेवल 2, लेवल 1 ऊपर था. शॉर्ट, रेगुलर एंड लॉन्ग लॉन्च, 1 सेट 2 मिनट, लॉन्च प्लस रीडबल 1 सेट 2 मिनट, डबल रिट्रीट. हर एक्शन क्लियरली वीडियो में है, आप वीडियो में देखेंगे हर एक्शन को डिफाइन किया गया है. प्लस लॉन्च 1 सेट 2 मिनट, ट्रिपल रिट्रीट प्लस लॉन्च, 4 रिट्रीट 4 बार पीछे गए 4 स्टेप, एडवांस 1 स्टेप आगे एंड लॉन्च, 4 रिट्रीट एंड काउंटर अटैक, देन ट्रिपल शॉर्ट एडवांस लॉन्च, flash. Ashok sir, you have 15 more minutes. We have got another few people coming. 15 more minutes you have to compile, sir. I know it is a vast subject, but if you can run it through, sir. I'll conclude. There is videos, so I'll not play. What I'll do, I'll not play these videos. I wish to play. These are the footwork using other tools. ये मेरे यहाँ के वीडियो है सेंटर से, जो जिसपे हमने काम किया है with skipping rope. वीडियो है स्किपिंग रोप यूज करते हुए, वीडियो नंबर 1. वीडियो नंबर 2 है स्किपिंग रोप यूज करते हुए. ये मेरे यूट्यूब पे भी हैं, यूट्यूब चैनल पे डाले हैं. विद टेनिस बॉल हैं, इसमें एक वीडियो डाला है अभी, और प्लायोमेट्रिक वाले 2 वीडियो हैं. तो टोटल अभी 5 डाले हैं. टेनिस बॉल के साथ बहुत सारे वीडियो हैं. लेट मी गिव एग्जांपल. टेनिस बॉल के साथ जो है सिंपल फुटवर्क करते हुए, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैक, step forward and launch, step launch, like that, and jump launch, flash, everything is covered with the tennis ball. And against wall is also there, the videos, but I uploaded till these 5 videos. Others I will upload for your ready reference. If I'll find the time, I'll cover these videos as well in the last. Now एक एनालिसिस टाइप से थोड़ा सा चीजें हैं, वो जो फॉइल फेंसर हैं वो समझते होंगे बहुत अच्छे से, इन लोगों को जानते भी होंगे. बाउंसी फुटवर्क वर्सेस ग्राउंडेड फुटवर्क. बाउंसी फुटवर्क वर्सेस ग्राउंडेड फुटवर्क. देखिए बाउंसी फुटवर्क स्टाइल, किसका स्टाइल रहा है बाउंसी फुटवर्क? यूकी ओटा, रिचर्ड कर्स एंड कैलम्ब्रिंग. आप इन सब का देखेंगे तो बाउंसी फुटवर्क रहा है. और एक ग्राउंडेड स्टाइल, बाल्दिनी, फोकोनी एंड मोर, ये वर्ल्ड रिनाउंड फॉइलिस्ट हैं. अगर आप ये 2 कैटेगरी में मैंने इनको इसलिए बांटा है, वो ऊपर बाउंसी फुटवर्क करते हैं और ये ग्राउंडेड फुटवर्क. व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच? इन दोनों के प्रोस एंड कॉन्स क्या है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, सो दैट फुटवर्क से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये चीज सोचा कि ये सबको कुछ काम देगी. Which is the best for the fencing style that revolves around speed and explosiveness? बाउंसी जो है, ये बात हो रही है बाउंसी फुटवर्क की. Which is best for a fencing style that revolves around the speed and explosiveness? It really depends on how good your technique is. अगर हम बाउंसी फुटवर्क करते हैं कि आपकी टेक्निक कितनी अच्छी है, कोई भी एक्सप्लोजिवनेस और स्पीड कैसी है उस पर डिपेंड करता है. हैविंग बाउंसी फुटवर्क एंड पुअर टेक्निक इज ए रेसाइप फॉर डिजास्टर. अगर बाउंसी फुटवर्क है और आपकी टेक्निक अगर पुअर है तो ये एक डिजास्टर होगा, क्योंकि बाउंसी फुटवर्क है वो आपको एक एक्सेलरेशन देता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में. वो एक्सेलरेशन जो है आप उसके बाद आपको लैंड करना ही है और वो आपके पास टाइम नहीं रहता है. Bouncy footwork probably works better for speed and explosiveness.
स्पीड और एक्सप्लोजिवनेस के लिए काम करता है बाउंसी फुटवर्क। ओटा एज एन एग्जाम्पल, ओटा एक एग्जाम्पल है उसका। बट इफ यू आर योर टेक्निक इज नॉट गुड एनफ, डोंट डू इट। अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट विल मेक योर टेक्निक इवन वर्स एज योर बॉडी इज मूविंग अराउंड मोर, क्योंकि इसमें बॉडी ज्यादा मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो वो अगर आपके पास टेक्निक अच्छी नहीं है, ब्लेड वर्क अच्छा नहीं है, तो और उसके साथ साथ आपकी का कोऑर्डिनेशन, स्पीड और एक्सप्लोजिवनेस का नहीं है, तो ये बाउंसी फुटवर्क आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। यूजिंग बाउंसी स्टाइल फुटवर्क, ब्लेड वर्क एंड प्रेसाइज, जो यूज कर रहे हैं बाउंसी फुटवर्क, ब्लेड वर्क एंड प्रेसाइज पॉइंट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू हिट। अगर बाउंसी फुटवर्क हम प्रयोग में लाते हैं तो ब्लेड वर्क और जो पॉइंट कंट्रोल है वो प्रेसाइज होना चाहिए बिल्कुल, अदरवाइज चांसेस आर मोर टू हिट विद द फ्लैट और मिस द ऑल टुगेदर। और मिस क्या होता है, नहीं तो चांसेस क्या है बाउंसी फुटवर्क में, या तो हमारा फ्लैट लगता है, फ्लैट मतलब पॉइंट ना लग के दूसरा पार्ट लगता है ब्लेड का, या हम टारगेट को मिस कर देते हैं एकदम से। However, if your blade work is good, अगर आपका ब्लेड वर्क अच्छा है एंड यू आर प्रिसाइज और आप ठीक हैं विद द पॉइंट अच्छे से कंट्रोल करते हैं, then the bouncy footwork is extremely effective and a killer combination footwork, and it is fundamental in the EP दो। और EP में काफी यूज करते हैं हम, जो इन आउट जंप्स के साथ करते हैं, उसमें कन्वेंशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कन्वेंशन का भी रोल आ जाता है जब आप बाउंसी फुटवर्क करते हैं। इट इज बेटर फॉर वर्किंग बैक फोर्थ ऑन शॉर्ट डिस्टेंसेस। इट इज नॉट एज गुड फॉर क्रिपिंग और चेजिंग दो। और ये चेज करने के लिए अच्छा नहीं है फॉइल में, क्योंकि फॉइल में आप फास्ट मूव करते हैं अटैक के लिए, या चेज जब वो पीछे जा रहा है, रिट्रीट कर रहा है आपका फेंसर, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बाउंस जो है सर 7 minutes left sir. right, no problem, I'll conclude, I'll no problem. Now we'll come to the distance, various distances in foil fencing. फॉइल फेंसिंग में भी हमने ईपी में डिस्कस किया था, ऐसे ही वेरियस डिस्टेंस हैं। ए फेंसर ए और बी मैंने मार्क किया है लेफ्ट और राइट पे। आउट ऑफ डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, करेक्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, क्लोज क्वार्टर डिस्टेंस है, नो डिस्टेंस है जब फेंसर एक दूसरे को पास कर रहे हैं और हिट ही नहीं कर सकते, एक साइड टू साइड हैं जब वो क्लोज क्वार्टर में भी हिट नहीं कर पा रहे और पास कर रहे हैं, और एग्जैक्ट बिल्कुल साथ में है। एंड पासेज डिस्टेंस पीछे भी डिस्कस हुआ था, जब हम टर्न बैक करके या तो कोई एक सिंगल फेंसिंग मोमेंट में जो फेंसर पिस्ट छोड़ रहा है हमारा ओपोनेंट, उसको हम टच करते हैं या पीछे जा रहा है, पासे हमने ब्लेड पकड़ा है, हमने रिपोस्ट किया है और फ्लिक या थ्रस्ट डिलीवर किया है, दैट इज पासेज डिस्टेंस। So these are the distances. How is distance determined? Ideally, it should be based on how far the other fencer is. देखिए डिस्टेंस हम इन डिस्टेंसेस से नहीं देख सकते हैं, वो बाउट में उसकी प्रैक्टिकलिटी अलग है, वो डिपेंड करता है। आइडियली जैसे ऊपर डिस्टेंस दिए थे, इट शुड बी बेस्ड ऑन हाउ फार द अदर फेंसर इज फ्रॉम योर टारगेट। आपके टारगेट से दूसरा फेंसर कितनी दूर है, बट जजिंग दैट इज डिफिकल्ट फॉर बिगिनर के लिए ये जज करना बड़ा मुश्किल है, एंड प्रॉब्लमेटिक फॉर इवन मेनी एक्सपीरियंस फेंसर्स एज वेल। सबसे देर में जो चीज सीखी जाती है फेंसिंग में, प्रॉपर डिस्टेंस जो है उसका हर एक्शन का टेक्निकल एंड टैक्टिकल एग्जीक्यूशन विद प्रॉपर डिस्टेंस, वो सबसे मुश्किल है सीखना। तो ये नहीं है, प्रॉब्लमेटिक होता है ये उन एक्सपीरियंस फेंसर्स के लिए भी कई बार। मैनी ऑफ our opponent will rely on the position of the two blades to determine distance. हमारे बहुत से opponent है ना, हमारे दोनों ब्लेडों की के बीच जो डिस्टेंस है उससे डिटरमाइन करते हैं, उससे मेजर करते हैं। A fact that you can use strategically
और आप भी ये एक फैक्ट है जो स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो, सच ओपोनेंट कैन बी ड्रॉन इन बाय पुलिंग योर ब्लेड। ऐसे ओपोनेंट या तो आपका ब्लेड पकड़ते हैं, पुलिंग इन करते हैं, बीट करते हैं, और हेल्ड मोर एट बे बाय एक्सटेंडिंग, या फिर एक्सटेंड करके आपको प्रोवोक करते हैं। नाउ there are some basic rules for foil. Last slide. After this, if you wish, I'll play the videos. Basic rule of the foil fencing that must be observed during training, coaching and competing. जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या compete कर रहे हैं, क्यों कहा मैंने कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कन्वेंशन है, कन्वेंशन के बेस ही लेसन होना चाहिए। तो ये कन्वेंशंस फेंसर को भी मालूम होना चाहिए, कुछ पार्ट हैं जो बेसिक्स हैं वो फेंसर को भी और हमें ट्रेनिंग डिलीवर करने में भी, टेक्निकल और टेक्टिकल एस्पेक्ट्स है। नंबर 1, फॉइल इज द थ्रस्टिंग वेपन ओनली। फॉइल एक थ्रस्टिंग वेपन है, बेसिक रूल है, देखिए। देयरफॉर टच इज स्कोर्ड बाय थ्रस्टिंग विद द पॉइंट एंड पॉइंट ओनली। तो इसलिए थ्रस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से आता है। हिट मेड ऑन अ पार्ट अदर देन टारगेट इज नॉट काउंटेड एज वैलिड। हिट जो है किसी भी पार्ट पर जो टारगेट का एरिया है उससे अलग अगर आता है तो वो वैलिड नहीं होगा। एवरी अटैक विच इज करेक्टली एग्जीक्यूटेड, जो अटैक सही तरीके से कोई भी किया गया है परफॉर्म, मस्ट बी पैरिड ऑफ, उसको हर हाल में पैरी करना है और कंप्लीटली अवॉइडेड, या तो वो पूरे तरीके से अवॉइड किया जाना चाहिए, इधर बाय द डिस्टेंस और बाय द ब्लेड, पैरी करके अवॉइडेड। पैरी गिव्स द राइट टू रिपोस्ट, और पैरी जो है, जहां के एपे फेंसिंग में दोनों फेंसर टच कर सकते हैं, कन्वेंशन नहीं है, फॉइल में पैरी हमें रिपोस्ट करने का अधिकार देता है। और व्हेन द ओपोनेंट हैज प्लेस्ड पॉइंट इन लाइन इन टाइम, जब ओपोनेंट अपना पॉइंट प्लेस करता है, मैंने पॉइंट इन लाइन इन टाइम लिखा है, इन टाइम समय रहते करता है। जब मैंने अपना इनिशियल एक्शन शुरू मैं अगर कर चुका हूं तो वो पॉइंट इन लाइन करे तो नहीं, जब वो मेरे इनिशियल ऑफेंसिव एक्शन शुरू करने से पहले पॉइंट इन लाइन करता है तो वो इन टाइम है। द अटैकर हैव टू डिफ्लेक्ट द पॉइंट फर्स्ट, अगर ऐसा है तो अटैकर को पहले पॉइंट डिफ्लेक्ट करना होगा, अगर ओपोनेंट ने सही समय में पॉइंट इन लाइन किया है, सीधे हम हिट नहीं कर सकते। स्टॉप हिट हैज नो प्रायोरिटी और करेक्टली एग्जीक्यूटेड सिंपल अटैक, स्टॉप हिट को, काउंटर अटैक को, सिंपल जो अटैक है जो सही तरीके से किया गया है उसके अगेंस्ट कोई प्रायोरिटी नहीं है। और कंपाउंड अटैक में भी उसे टाइम फाइंड करना पड़ता है दो एक्शन के बीच में, क्योंकि सिंपल एक्शन का एक फेंसिंग टाइम होता है, इसलिए। तो Ashok ji, last 2 minutes please, I have got number of things lined up, sir. Stop hit has no priority, we have discussed. Continue step forward with leg crossing one another. देखिए, कंटिन्यू स्टेप फॉरवर्ड जो करके आता है ओपोनेंट विद लेग क्रॉसिंग, या कोई भी फेंसर करता है विद लेग क्रॉसिंग वन अनदर, कॉन्स्टिट्यूट अ प्रिपरेशन। ये फुटवर्क का पार्ट है, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूट, अगर ऐसा फुटवर्क कोई करता है तो वो प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये भी डाले हैं। एंड एनी सिंपल अटैक हैज प्रायोरिटी अगेंस्ट अबोव, और इस तरीके से फुटवर्क के साथ प्रिपेयर करने वाले के अगेंस्ट सिंपल अटैक को प्रायोरिटी रहेगी। साइमल्टेनियस, देखिए किसी ने ईपी में पूछा था, वहां डबल टच और साइमल्टेनियस का उतना महत्व नहीं था, यहाँ पे महत्व है, क्योंकि वहां चाहे साइमल्टेनियस से आए चाहे डबल हिट से आए, टच दोनों को मिलता है। यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियस, ड्यू टू सिमुलेशन, साइमल्टेनियस कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन अटैक बाय बोथ फेंसर्स, हिट्स एक्सचेंज्ड आर एनाल्ड। ये क्या होता है, एक सिमुलेशन है, कंसेप्शन, एक ही टाइम में एक ही तरह का एक्शन दोनों फेंसर एक साथ करते हैं, पर दोनों का टच हो जाता है, टाइमिंग सेम है, इसमें फेंसर्स के हिट अनाल कर दिए जाते हैं। व्हेयरएज डबल हिट क्या है, रिजल्ट दोनों फेंसर को टच हुआ है, डबल हिट में भी साइमल्टेनियस में भी। डबल हिट में क्या है, रिजल्ट ऑफ अ फॉल्टी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द फेंसर, एक फेंसर का दोनों में से फॉल्टी एक्शन होता है। हिट तो दोनों लैंप आए हैं, किसी का हो सकता है कि मैं एग्जांपल दूं आपको, अटैक का एग्जीक्यूशन गलत है, आर्म विड्रॉ करके किया है, या
अटैक करेक्ट नहीं था, वो एग्जांपल हो सकते हैं। तो डबल हिट हमेशा जो 2 लैंप आए पर उसमें एक फेंसर फॉल्टी है, एज फार एज कंसर्न फॉइल। Thank you. If you wish, I'll play some few videos. Sir, we would request you if you can share the link of those videos. And we have got 2 more people to introduce, and there are certain questions, sir. If there is a time, we will allow you, but still, we would request. We still have a classes of offensive and defensive actions in foil. Right, then right. you can do that. Now, Right, first thank of all, I just wanted to introduce to you Dr. Rajesh Prasad Gupta. Dr. Saab, are you listening to me? Yes, sir. I can listen you, sir. Dr. Rajesh is in the Medical Commission of Fencing Association of India. He is a renowned name in the field of orthopedics. He has done number of courses, and he is visiting faculty to number of institutes in the country. Currently, he is working in one of the reputed hospitals in Delhi. And he has been with us in South Asian fencing games also, which were there in the Nepal. So on the request, I requested him to come and kindly share your views. And doctor has already told me to tell you that in case you are suffering from some chronic injury, you can consult him. Being a medical commission on the Medical Commission of Fencing Association of India, he will attend your things. But only thing, chronic injuries. Dr. Ji, over to you, Gupta Saab. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Good morning, all of you. Thanks for giving nice introduction about me, Vikram sir. And first of all, I am grateful to Rajiv sir, Basir sir, and all officials of Fencing Association of India for giving me this opportunity to serve as a sports medicine specialist. I will advise all the athletes, please do training under the guidance of coach, trainer, physio to prevent injury and for better performance. And feel free to contact me for any sports related injury, either on my personal contact number or email address. And lastly, I will say, stay home, stay safe to prevent this corona pandemic. And we hope that we will come soon. We will come out from this corona pandemic. Thanks, everyone. Good luck for next events. Thank you, sir. I will share your number with all of them and your email ID also on our community. I think I have added you in the community also. If not, I will do that. Yes. Thank you, Dr. Sir. Please, you also stay safe. You are Corona warriors for us. Now, Krishi, I request you if you can get Radhika Avati on line. Radhika Avati, the current national champion. I wanted to surprise her in the foil. Can you see her? Hello. She is there. Hi, Radhika. Hi, sir. Good morning, sir. Good morning. Welcome you on the. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay, great. Radhika, welcome. You are one of the promising fencers we have in India as far as foil is concerned. I know you have been trained by Sagar Laghu and you are doing well. You had your ups and downs too. Now, in next 1 minute or so, I wanted you to express yourself because you are attending this course every day. And what you will tell it to the other foil fencers. Over to you, Radhika. Good morning, all of you. सर मुझे मतलब अभी ये क्लास तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे फॉइल, मतलब मैं फॉइल प्लेयर हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है इसमें, जैसे कि ब्लेड या साइज का जो भी हो। अभी इस क्लास में मुझे अच्छे से मतलब वो पता चल रहा है कि क्या मतलब उसका क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास अटेंड करके, और मैं सब फॉइल प्लेयर को रिक्वेस्ट करूँ कि ये क्लास डेली अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू राधिका। आप मेरा एम यही है कि मैं आपको लोगों को बताऊं कि राधिका इज ए रोल मॉडल। आपने एक टॉप लेवल पे भी खेला हुआ है। यू हैव बीन इनटू मैनी एशियन चैंपियनशिप्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। आप मुझे ये बताइए अगले 10-20 सेकंड में एक कोच और फेंसर की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब आप किसी टफ बाउट में हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कोच की तरफ देखते हैं। वो एक कैसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है कोच और फेंसर के बीच में? कोच और स्टूडेंट का बॉन्डिंग कुछ अलग होता है सर।
और हमें इस सिचुएशन में जैसे कि अभी मेरे खुद के कोच सागर सर, उनको कई टाइम पे मतलब जिस टाइम में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, उनको पता होता है कि क्या मुझे मोटिवेट कर सकते हैं या इस मूवमेंट में क्या कर सकती हूँ। तो उनका हमारे बारे में उनको अच्छे से नॉलेज होती है कोच को, कि एक प्लेयर का मतलब उसको क्या चाहिए क्या नहीं है। तो उस टाइम पे वो जो एनालाइज करके उनका उनका सिग्नल से हमें पता चलता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। थैंक यू राधिका। आई थिंक आपने इन छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है, जो कोच और एथलीट का रिलेशनशिप होता है। और मैं रोज देखता रहता हूं कि कौन कौन जो हमारे इलीट फेंसर्स हैं जो ये जूम सेशन अटेंड करते हैं, ताकि मैं उनको सरप्राइज देके कोचेस से इंट्रोड्यूस करा सकूं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करा दूं। आई पर्सनली वांट टू थैंक यू कि नेशनल चैंपियन होने के बाद भी आप यहाँ आती हैं और ये जूम सेशन अटेंड करती हैं। बहुत से हमारे फेंसर्स हैं जो इंटरनेशनल फेंसर्स हैं, वो I haven't seen them on Zoom. Maybe they are training or they have not compromising on the training cycles. But thank you very much for such a role model for all the young fencers and coaches who are watching you. Best of luck, beta. India has got a lot of hopes from you. Thank you, sir. Now, मेरे पास I have 2 more minutes. If I can get Tukaram ji, one of the best foil fencers I have seen in India. Tukaram ji, yes, I will unmute you. हेलो तुकाराम जी, कैन यू हियर मी? हाँ भैया। तुकाराम जी, आप तो एक बहुत तगड़े कोच रहे हैं, मैं आपके साथ खेला भी हूं और आई थिंक इंडिया में आपसे ज्यादा स्पीड में फॉइल खेलने वाला कोई नहीं था। अभी आप असिस्टेंट फेंसिंग कोच हैं औरंगाबाद में और आपने बहुत अच्छे अच्छे फेंसर प्रोड्यूस किए हैं, सिर्फ फॉइल में ही नहीं बल्कि दूसरी गेम्स में भी। आप एक खिलाड़ी भी थे और आप एक कोच भी थे। आप मेरे को अगले 20 सेकंड में ये बताइए कि कौन सा रोल ज्यादा अच्छा था, खेलने वाला या कोच का? अगर दोनों अच्छे हैं तो आप क्या बताएंगे, जो खिलाड़ी और कोचेस दोनों हमारे साथ लगे हुए हैं? प्लीज तुकाराम टाइप आंसर चाहिए मुझे, प्रॉम्प्ट एंड गुड, जो प्रैक्टिकल हो। बोलिए भैया, एज ए प्लेयर ही अच्छा है भैया। व्हाई नॉट एज ए कोच? एज ए प्लेयर ही ठीक था। अभी आप बताइए, एज ए कोच आप कैसे अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं? एज ए कोच में क्या है भैया, मैं बेसिक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ बस। आप थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, बहुत से कोचेस और फेंसर सुन रहे हैं कि आप ट्रेनिंग शेड्यूल क्या करते हैं और अपने प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे परफेक्शन लाते हैं उनमें। भैया, मैं स्लो और बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आप फास्ट करने जाओगे तो परफेक्शन नहीं आएगा। मेरे पास स्पीड थी बट परफेक्शन नहीं था। ओके, एज ए प्लेयर, पर एज ए कोच आपने थी ना। ओके। हाँ, अभी वो बच्चों को ये देखता कि हर एक आदमी स्पीड करना चाहता है, बट परफेक्शन नहीं है तो आप आगे ज्यादा देर तक नहीं जा सकते। भले आपके पास स्पीड हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे फर्स्ट है कि आपकी परफेक्शन अच्छी हो। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, और बेसिक प्रैक्टिस अच्छा। आपने तुकाराम जी एक बहुत अच्छी बात बोली, जो हमारे कल का जो पिछला सेशन था उससे रिलेटेड है, दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। You said कि when you were player, you had a lot of speed but didn't have a perfection. Hence, you did a lot of reflective practice. You understood कि how I can implement it in my students. तो आपने अपने स्टूडेंट्स को उस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को करके आपने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप स्लो मूवमेंट करिए, जब मूवमेंट अच्छी हो जाएंगी, परफेक्शन आ जाएगी, तो स्पीड कैन ऑटोमेटिकली इंक्रीज। वंडरफुल, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। एंड आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम ए तुकाराम, जिन्होंने एशियन गेम्स खेली है, उस लेवल के प्लेयर हैं। कुडोस तुकाराम, थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। Now I come to the question answer session. Lohit and Deepak, there are maximum question of referees and one question related to Ashok ji. Deepak and Lohit. Okay, Lohit, I can unmute. Lohit? Yes, sir. Deepak, you're listening? Sir. दीपक, एक क्वेश्चन आया नेपाल से। दे सेड कि इफ ए फेंसर कम ऑन द पिस्टे इन इलेक्ट्रिक जैकेट एंड द नेम एंड द नेशनलिटी इज नॉट रिटन ऑन द बैक, what grade of offense it is?
सर मैंने कल ही मैंने सर अपने लेक्चर में मेंशन किया था सर, इट्स सबसे पहले मैंने जो मेंशन किया था वो नॉन एब्सेंस ऑफ द नेम, जो अगर बैक पे नहीं होगा तो उसमें एलिमिनेट फ्रॉम द कंपटीशन किया जाएगा। इसमें जो सर आपकी पेनल्टी चार्ट में पहला ही सबसे फर्स्ट ऑफेंस है सर ये, एब्सेंस ऑफ द नेम एंड नेशनलिटी ऑन द बैक, एब्सेंस ऑफ नेशन, यूनिफॉर्म और लोगो। तो ये मैं ऑलरेडी कल क्लियर कर चुका हूं, अगर आपके नाम नहीं है बैक पे तो आपको एफआई कंपटीशन में खेलने नहीं दिया जाएगा, आप एलिमिनेट हो जाएंगे कंपटीशन से। Okay, straight away eliminate. No even warning. You can No change warning, it. sir. No warning. Point to be noted. No warning. No warning. Now, Deepak, thank you very much. आप अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं continuously. अगले 1-2-3 हम आपको ब्रेक देंगे. You can take a break. We will get another panel. जैसे हमने other international referee राशिद को ब्रेक दी है. Another question is for Lohit. Thank you, Deepak. Thank you very much, Lohit. Yes, Colonel. Lohit, question is again from some fencer that why people are using colored mask in fencing? Are they authorized? If they're authorized in some events or in all events? Well, if you're talking about FI competition, only Yes. the colored mask with the national logo, national flag is allowed for now. But otherwise, any other colored masks are not allowed if it is an authorized FI competition. Somebody has told me why people are using colored mask. It is a tactic to deviate your opponent or branding of nation. Is any particular reason? Because I don't know. According to me, there are two reasons. One is the branding part, Yes. and the second one is it actually distracts the opponent while fencing. So these are the two main reasons according to me. Thank you, Lohit, and I also must thank you the way you are working day and night to update the Fencing Association of India's page, Facebook page, and it is an unnoticed thing by many, but I must appreciate that. Now, I have got a question for Ashok ji. We have got 2-3 questions for him. Before that, I want to tell you, now we will be putting some TED Talks and motivational videos. जो मैं पहले आपको बताते रहता था, we want to put it on Fencing Association of India's Facebook page. You are requested to visit it and share it. After that, we will be putting the next day's program on Fencing Association of India's Facebook page only. We will be asking questions there only. And I promise you, Abhi, we have got around 13-14 days. We will get maximum coaches and players to share their ideas, because we have already told them what we want to teach you. Now you need to come up with your ideas. Now, Ashok ji, question is for you. Sir, are you listening, sir? Hello. You will have to unmute. I will do. I'll do that. Ashok ji, one question is for you, and that is a very basic question. He says how to beat the timing of opponent in foil fencing. It pertains to the defensive and offensive actions, but if you can answer it, I have 2 more questions, sir. Just be brief, sir. How to beat? Timing, reaction time or counter attack timing of the opponent. That's what I think he meant. You have to improve your reaction ability and response time as well. And sir, what are the exercises for that? There are lots of exercises to increase like that. We are doing some audio visual exercises with the tempo exercises we usually used to do with the and some target exercises as well, with the glove and touching the dropping the glove and touching the target, as well as some exercises are there, coordination and tempo exercises with assisting tools. They will give you, for example, against wall, tennis ball, you'll throw the ball and catch with the straight hand, like in fencing. It's coming every time it will come with a different bounce and different timing. You'll see, you can, from standing position, from step forward, from launch distance, you have to perform launch, you have to throw the ball and catch in the time.
These are the exercises. There are lots of exercises. I have videos. I'll share and the best tempo exercises. Thank I have you, videos sir. for this. Okay, sir. We would request you to share that. No, another question is related to include how you select foil fencer from the somebody who's beginning. What qualities and attributes a foil fencer must have? We have just 3 minutes. I have one more speaker to get online. If you can precisely say it in as early as possible. Yes, if you are asking about the raw talent identification, raw or somebody who's intermediate, you train him for 6 odd months with the basic of fencing. How you identify that he's fit for foil? He should be agile. Then, as you know, the foil is much agility is required. Flexible agility and all other aspects other than, because it is the combination, foil is the combination, as I told you, Ipe and Saber. Here are convention, who is proper in coordination, who is fast, is much explosive, and who is more precise in delivering a target to the limited portion. And here is the role of डिफेंस इज एज वेल, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि डिफेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऑफेंसिव एक्शन है फॉइल जैसे इवेंट में. Thank you, sir. Thank you. Now there is this young girl who has been watching our videos every day and making a note of it. I wanted to surprise her in next 1 minute to get her online. I am doing all these things just to make you feel that you are also important. It is not only you who are watching these videos, we are also watching you, your grit and determination. Utsavi, I am unmuting you. Utsavi Chaturvedi, see, it is your good day, you are surprised. I have unmuted you. You can listen to me. Please share what have you learned in last 2 weeks, because you are one of the regular who has been attending. You are not audible. Can you? I have unmuted you. I have unmuted you. Can you speak? Hello. No. You're. I think you need to. अपने earphone उतारो और phone mobile पे बोलो. No. You're not audible. Remove the earphone and speak on mobile. Remove the earphone. Utsavi, you are there? Ashok, Utsavi, can you listen to me? Utsavi? Okay, she's not there. I think I just wanted to. Akanksha, you are there, please. We have been trying to get you since long. Another 1 minute, please give me. I'm not able to. Oh, yeah. Please go ahead, Akanksha. Akanksha, wait. Thank you, sir, for giving me the chance to speak. Good morning to all. मैं सिर्फ 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि बाकी सब चीजें ऑलरेडी सब बोल चुके हैं. पहली चीज की ओवर ट्रेनिंग के कॉजेज क्या है और दूसरे ये सब ट्रीटमेंट क्या है. कॉजेज ये है कि पहला कि जो स्टूडेंट है या एथलीट है उसको नॉलेज नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए और किस हिसाब से करना चाहिए. और दूसरा कॉज ये हो सकता है कि वो एडिक्टेड है उस एक्सरसाइज सेशन के लिए कि वो बार बार उतने ही टाइम पीरियड के लिए उसको बार बार रिपीट करना चाहता है और वो एक्सरसाइज के बिना रह ही नहीं सकता है. जैसे कि एक ड्रग की एडिक्शन होती है वैसे ही एक्सरसाइज की भी एडिक्शन है. इसको भी एक सिंड्रोम माना जाता है. और ये इसलिए क्योंकि 2 हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन और डोपामाइन जो है वो रिलीज होते हैं जिनसे हमें प्लेजर मिलता है. तो इसलिए जो एथलीट है वो बार बार जो ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है और वो रिकवरी को भूल जाते हैं कि उन्हें रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए और वो एक्सेसिव लोड यूज करते हैं. बार बार अपने आप को वो सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा वेट से ट्रेन करेंगे वेट ट्रेनिंग में तो उनके मसल्स जो है वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे. बट अगर रिकवरी और डाइट नहीं होगी तो उसके बिना कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज को करने का. जैसे कि अगर हम
4 चपाती खाते हैं, जो हमारी मिनिमम सेटिस्फेक्शन है। अगर हम उससे ज्यादा खाएंगे तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। हम कुछ भी एक्सेस में करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है हमें नेगेटिव वे में हमें इफेक्ट करेगा। Akanksha, thank you very much. I think, Akanksha, what are you doing? Let first ask, what are you doing? What you are pursuing? Sir, I'm pursuing masters in physical education, and Thank you, thank you, thank you. I know that. That is why you have a lot of knowledge about it. And I just wanted to honor you by getting you on this Zoom session because your contribution is good. We require some excellent people who have got a knowledge. Keep it up. We look forward to come up you as a good coach in national arena in years to come. Thank you very much. All you meant that other than exercise, you need to follow your recovery protocols also. I was talking to somebody yesterday. He is a sports psychologist of United States Olympic Association. He said that rest doesn't mean कि आप चारपाई पे बैठे हुए हैं and you are just watching your mobile. There is something called blue light. Although most of the devices are blue light foolproof. If you are doing your mobile on a bed for 5 minutes, it amounts to taking 2 cups of coffee. आपका ब्रेन जो स्लीप में जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम लर्निंग और रिकवरी हो, वो एक्साइट हो जाता है. Akanksha, we will get you later. We will get you later on that. Keep contributing on the Facebook chat. Thank you very much for having you. Keep participating. We will get you on a Zoom session. I promise you, we will make it more interactive. Now, before I conclude, tomorrow we have got a classes on foil again. Check on the Facebook. For the last word, I will give this honor to the speaker of the today, Ashok sir. If you want to conclude in next 30 minutes, we are already running out of time. Please, over to you. Conclude, Ashok sir. I wanted to say simply only 30 seconds, only 2 lines. Please, 2 lines for all of us fencers as well as the coaches. Robert Frost की 2 पंक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Wow, 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 wow. Sir, now आपने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि we should end with some lesson. तो मैं भी कल एक बैरन डी कुर्बिटीन है जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, right. मैं कल कोट पढ़ रहा था. उन्होंने बोला there is no higher ideal of human race. Right. Human race का इससे बड़ा कोई आइडियल नहीं है than promoting peace through sports. ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए प्रमोटिंग पीस एंड ब्रदरहुड थ्रू स्पोर्ट्स. हेंस आज तक की सबसे बड़ी पीस मूवमेंट जो वर्ल्ड में शुरू हुई है, दैट इज ओलंपिक गेम्स. वी थैंक यू वेरी मच फॉर अशोक सर, सच ए वंडरफुल लेसन, फॉर योर पार्टिसिपेशन. Please write your comments on the Facebook community and WhatsApp. I promise you, I will surprise you. I am always very innovative with ideas. I'll get people who are not expecting, like Akanksha, Radhikavati, and Ariban. So many. We have got instructors. This is more. Thank you very much. There are so many people. Tomorrow there are a lot of